So till now we have completed projections of line. So we will move forward towards projections of plane. So as you can say, line is having 2 points. Okay, so between 2 points there we can draw a line. But in case of plane figures or surfaces have only two dimensions. Okay, length and breadth. So if you consider any polygon like hexagon, pentagon, so they are having length and breadth. So, but they do not have thickness. So if you consider a plane, in that case, they do not have thickness. So a plane figure may be assumed to be contained by a plane and its projection can be drawn. Okay, so that particular hexagon or pentagon can be assumed that they are in that plane, xy plane, and then we have to draw the projections. So these planes are divided into two main types. Two main types: perpendicular planes and oblique planes. Now in perpendicular planes, we are dealing with this. So these planes can be divided into following subtypes. First, perpendicular to both the reference planes. To both reference planes and perpendicular to one plane and parallel to other, then perpendicular to one plane and inclined to other. So we'll see those examples here. Okay. So first, plane perpendicular to both reference planes. So if you see the example, there is a square named ABCD and it is perpendicular to both the planes, horizontal as well as vertical plane. Okay, so if you draw its projections, okay, so on vertical plane you will see as VT, vertical trace, and if you draw a straight line or projection towards XY on horizontal plane, you will see the name HT. Okay, so if you see the diagram here, both planes are perpendicular. So if you see in top view, you will get a line, and if you see in front view, you'll get a line. So that is known as HT and VT. If the plane is perpendicular to both the reference plane, then we'll get such kind of image. Then plane perpendicular to one plane and parallel to other plane, perpendicular to one and parallel to other. So plane perpendicular to HP and parallel to VP, as you can see in the figure, a triangle PQR. One triangle is given here. A triangle PQR. It is perpendicular to HP. It is perpendicular to HP and parallel to VP. And parallel to VP. Its HT is parallel to XY. Horizontal trace HT, it is parallel to XY and it has no VT. Okay. So if you see in the front view, if you see here, you can see in the front view, you'll get a triangle here. You'll get a triangle. As you can see in the front view, the name will be P dash, Q dash, and R dash. And when you see the from the top, you'll get a line that is HT. So there will be no VT. There will be only HT in in front view. We can see entire triangle. Okay. So in horizontal plane, you can see a triangle. In vertical plane, you will see a line. But suppose if you take an example of say a square, which is named ABCD, and it is exactly opposite of that. Suppose if it is kept perpendicular to VP, VP को perpendicular है और HT को parallel है. Okay, then we can get the top view. आपको top view कहाँ मिलेगा? VP में. इसलिए आपको देखो यहाँ टॉप व्यू, मतलब ये जो उसका व्यू है आपको VP में मिल रहा है. सो HT नहीं दिखेगा, बट बिकॉज इट इज पैरेलल टू HP, सो विल गेट अ फ्रंट व्यू इन HP. सो HP में अगर है तो VT,
एचपी में है, अगर एचपी में अगर है तो वीटी नाम देना, और वीपी में अगर है तो एचटी नाम देना. ओके, हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस. Now, third example, perpendicular to one plane and inclined to other plane. Perpendicular to one plane and inclined to other plane. As you can see here, uh, uh, a square ABCD. A square ABCD. It is perpendicular to HP. See here, perpendicular to HP and inclined angle phi to VP. Now it is inclined. See, inclination दिया है phi to VP. Its VT is perpendicular to HP. Sorry, is VT is perpendicular to XY. VT, it is perpendicular to XY, and its HT is inclined to phi, and it is HT is inclined to phi. So you will get such kind of view. Okay, so these are the basics thing regarding the plane. Now we'll move towards the normal examples. Okay, these are also one plane perpendicular to VP and inclined to HP. So we'll see directly the example. So write down what this example: a rectangular plane 40 mm by 60 mm side has shorter side in HP and incline 30° to VP. Surface of plane makes 45° with HP. Draw its projection. एक रेक्टेंगुलर प्लेन दिया है 40 mm बाय 60 mm का, जिसमें जो शॉर्टर साइड है मतलब 40 mm, वो कहाँ दिखने वाली है आपको? HP में. और इंक्लाइंड है, वही साइड इंक्लाइंड है 30° टू VP. And surface of the plane makes 45° with HP. Okay, so we'll see the so we'll draw first XY line, and we have to draw a rectangular plane 40 mm by 60 mm. अब इसको ड्रॉ कहाँ करना है? इन HP और VP. तो ये जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे जब भी दिया रहेगा सरफेस ऑफ प्लेन मेक्स 45° विथ HP, ये बात ये देखने का. सरफेस अगर ये लिखा है सरफेस ऑफ प्लेन 45° विथ HP, मतलब 45° कहाँ पे? HP में है. तो स्टार्टिंग जो रहता है ना, स्टार्टिंग जो बनेगा, जो भी आप प्लेन बनाओगे, वो आपको VP में बनाना पड़ेगा. वही अगर ये 45° विथ VP होता तो ये रेक्टेंगल आप यहाँ बनाते, कहाँ पे? HP में बनाते. ओके, सो जब भी आपको ध्यान रखना है तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि सरफेस ऑफ अ प्लेन मेक्स 45° विथ HP ना, ये याद रखना. तो एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो जिसका लेंथ है 60 mm और जिसका विड्थ है 40 mm. दिस इज योर फर्स्ट डायग्राम. ये आपको यहाँ ड्रॉ करनी है. ठीक है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो. और ड्रॉ करने के बाद इसको नाम दे दो ABCD. इज योर फर्स्ट फिगर. और इसको प्रोजेक्ट करो XY लाइन पे, और प्रोजेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे उसका टॉप व्यू मिल जाएगा. ताकि हमने सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ की. XY लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको ड्रॉ करना था एक रेक्टेंगल. अब उसने क्या बोला कि शॉर्टर साइड इन HP. तो ये देखो शॉर्टर साइड, ये कहाँ दिख रही है आपको? HP में दिख रही है. शॉर्टर साइड इन HP, इसलिए वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको VP में. तो शॉर्टर साइड इन HP. और दूसरा ये बोला गया था कि सरफेस ऑफ प्लेन मेक्स 45° विथ HP. सो जब उसने बोला सरफेस ऑफ प्लेन मेक्स 45° विथ HP, तो दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉन दिस रेक्टेंगल इन VP. इतना ड्रॉ करो. ये सर्कल जो है ना, मैंने वो नंबरिंग के लिए दिया था. ये सर्कल नहीं बनाया तो भी चलेगा. ठीक है, मतलब पहले क्या ड्रॉ करते करके मैंने सर्कल दिया था, उसमें नंबर नहीं आया. सो यू डोंट ड्रॉ दिस सर्कल, ओनली यू ड्रॉ दिस रेक्टेंगल.
हो गया इतना? हो गया क्या? हेलो, आर यू डूइंग इट? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसको प्रोजेक्ट किया हमने एक्स वाई लाइन पे, तो वी गेट ए लाइन। और ये नाम है, जो दूर दिखता वो नाम पहले लिखने का, और जो पास में एक्स वाई के वो बाद में लिखने का। इस तो यहाँ पे भी सी दूर है तो उसको पहले लिखो, जो पास में है वो बाद में लिखो। तो फ्रंट व्यू में डैश लिखते हैं, टॉप व्यू में विदाउट डैश। देन नेक्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकंड फिगर। अभी हमको क्या करना है, एक एंगल लेना है। कितना एंगल लेना है हमको? 45 डिग्री का एक एंगल लेना है आपको। थोड़ा बाजू में लो, थोड़ा जगह छोड़ दो, और एक 45 डिग्री का एंगल लो। और जो लाइन आपने ड्रॉ की थी, है ना, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन सेकंड फिगर वाली, ये एग्जैक्टली मतलब यहाँ से पहले एक लाइन ड्रॉ करो, और इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो सेम लेंथ यहाँ तक लो। ठीक है ना? ये सेम लाइन को आपको क्या करना है, 45 डिग्री इंक्लाइन करना है। 45 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ सरफेस दिया रहता है, वो होता है पहले। सेकंड ये 3 स्टेज प्रॉब्लम है। तो सेकंड स्टेज में क्या आएगा, ये वाला सरफेस ऑफ द प्लेन, ये पहले लेना 45 डिग्री विथ HP। ठीक है, हमने ये लाइन बनाई और इसी लाइन को हमने 45 डिग्री इंक्लाइन किया। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। और इसका लेंथ क्या रहेगा, जो ये लेंथ ऑफ फ्रंट पे वो सेम लेंथ ये रहेगा। उसके बाद उसको प्रोजेक्ट करो आप नीचे, इसको प्रोजेक्ट करो, और ये वाला, ये जो है ये वाला प्रोजेक्ट करो। तो आपको यहाँ पे रिड्यूस्ड साइज में एक रेक्टेंगल मिलेगा, उसको आप डार्क कर दो। ओके, क्या किया हमने, पहले रेक्टेंगल ड्रॉ किया 60 बाय 40 mm, उसको प्रोजेक्ट किया एक्स वाई लाइन पे, और सेम लाइन को हमने इंक्लाइन किया बिकॉज इट इज गिवन हियर सरफेस ऑफ द प्लेन। तो वेन एवर यू आर गेटिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू हैव टू ऑलवेज लुक द थिंग। अगर सरफेस दिया है तो वो पहले आएगा, और यहाँ इसके बेस पे हमने सिलेक्ट किया था कि प्रॉब्लम को स्टार्ट कहाँ से कर दे। तो सरफेस ऑफ प्लेन मेक्स 45 डिग्री विथ HP, इसलिए ये रेक्टेंगल कहाँ से ड्रॉ किया हमने, VP से ड्रॉ किया। ये मैंने आपको पहले बताया। और दूसरा ये बनने के बाद हमने इसको सारे पॉइंट्स प्रोजेक्ट किए, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, टॉप व्यू मिल गया। देन इसी लाइन को 45 डिग्री से हमने इंक्लाइन, मतलब 45 डिग्री का एंगल लेके एंगल लिया, इंक्लाइन किया। इट इज दिस सरफेस इज इंक्लाइन 45 डिग्री विथ HP, इसलिए HP पे बनाया। सेम लाइन को बनाया, मतलब ये इतना कंपास में डिस्टेंस दो, यहाँ से इतना डिस्टेंस काट दो, तो आपको ये लाइन बराबर मिल जाएंगे। फिर इस लाइन को प्रोजेक्ट करो और ये वाले रेक्टेंगल को प्रोजेक्ट करो, आपको ये 4 पॉइंट्स मिलेंगे, ये चारों पॉइंट को कनेक्ट कर दो। सो यू विल गेट दिस वन। ओके, अभी हमको इसमें देखो क्या दिया है, और से कि a rectangular plane 40 mm by 60 mm has shorter side in HP, वो तो हमने दिया शॉर्टर साइड। अब ये सेम शॉर्टर साइड क्या बोल रहा है वो, इंक्लाइन 30 डिग्री टू VP। ये जो शॉर्टर साइड है, ये या ये कोई भी एक लो, वो 30 डिग्री इंक्लाइन कर रही है। तो इसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं नीचे में, और उसको क्या करते हैं, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन देते हैं, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन देते हैं।
30 डिग्री का इंक्लिनेशन दो। ये फोर्थ फिगर है, इस तरह से स्टेप्स है। ये मैंने आपके लिए दिया, ऐसे ड्रॉ करते हुए बनाने का नहीं है आपके लिए, कि पहले स्टार्ट यहाँ से किया, देन सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। कहीं पे अड़ गए होंगे तो थोड़ा पूछो, हाँ, इफ यू आर स्टक अप। सर वो 30 डिग्री कैसे लेना है? 30 डिग्री कैसे लेना है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा, और इसे स्ट्रेट रखो ना, ये लाइन जो है ना, ऐसे स्ट्रेट रखो यहाँ पे। ये है ना प्रोटेक्टर, यहाँ से आपको 30 मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसे रखो ये लाइन, यहाँ पे 90 है, ठीक है, ऐसे रखो स्ट्रेट में, यहाँ पे ये टच होगा और यहाँ से 30 डिग्री निकालो। प्रोटेक्टर को ये लाइन से स्ट्रेट रखो, पर मतलब परपेंडिकुलर रहना चाहिए उसको, तो ये आपको 30 डिग्री मिलेगा। ओके सर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, अभी हमको ना ये सारे के सारे पॉइंट्स है ना प्रोजेक्ट करने हैं। यहाँ पे आपको सेट स्क्वायर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स, और वो परपेंडिकुलर रहेगा इस लाइन को परपेंडिकुलर। ओके, देखो इस तरह से यहाँ पे, और ये चारों पॉइंट पहले प्रोजेक्ट करो। प्रोजेक्ट कैसे करोगे, जो आपके पास सेट स्क्वायर है, जो आपके पास सेट स्क्वायर है, मतलब ये वाला, ऐसा वाला सेट स्क्वायर है ना, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटेक्टर होता है, ये वाला सेट स्क्वायर, ठीक है, जिसमें ऐसी लाइन होती है वाली, तो ये प्रोटेक्टर को आपको यहाँ रखना है, ठीक है, मतलब इस तरह से, ये, अरे यार ये बराबर बना नहीं, इस तरह से रखना है, ये लाइन पे रखो, हाँ, ये ऐसा रखना है, ठीक है, और इसको ऐसे सामने लेके जाना है ये पॉइंट से, तो आपको ये पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और दूसरा प्रोटेक्टर, दूसरा जो है ना सेट स्क्वायर, वो इसको यहाँ लगाओ, जो दूसरा है ना वो यहाँ लगाओ, इसको हाथ, ये जो है ये वाला प्रोटेक्ट यहाँ पे हाथ से ये करो, पकड़ो, और ये जो दूसरा प्रोटेक्टर इसको खींचो है सामने सामने की तरफ, तो ये आगे आगे आ जाएगा, ये पॉइंट पे आएगा, यहाँ लाइन ड्रॉ करो, फिर आगे लेके जाओ, यहाँ लाइन ड्रॉ करो, फिर आगे लेके जाओ, यहाँ लाइन ड्रॉ करो। ऐसे आपको ये पूरे मिलेंगे। अदरवाइज आपके पास रोलर होगा तो रोलर से भी आप यहाँ रखो, ये आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो नया X1 Y1 है, ये X1 Y1 है नया वाला, ये जो नया X1 Y1 है उसको परपेंडिकुलर राइट, ये नया X1 Y1 है जो 30 डिग्री का है, इसको ये पूरे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री, पूरे 90 डिग्री के। पता नहीं समझा कि नहीं, मैंने ट्राई तो किया समझाना, नहीं समझा तो पूछो मेरे को। पहले लाइन ड्रॉ करो, फिर ये जो पॉइंट कैसे लिए मैं बताता हूँ, पहले आप इतना इतना ड्रॉ करो, देन आई विल टेल यू।
ठीक है, 4 पॉइंट है तो 4 ही लाइन आएंगी। वही अगर सर्कल रहता तो 12 पॉइंट रहते। सोचो आप, सर्कल अगर बना यहाँ पे तो 12 पॉइंट आपको खींचने पड़ेंगे। कितना बड़ा, मतलब ये प्लेन के प्रॉब्लम सॉल्व करने को आपको हाफ 45 मिनट्स लग सकते हैं। मान लो अगर ऑनलाइन एग्जाम रहेगा तो आप बच जाओगे, ये सब ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन में आपको एमसीक्यू रहेगा। अगर ऑनलाइन नहीं लिया, उन्होंने बोला कि नहीं आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देन आपको ये पूरे न्यूमेरिकल्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। और ये जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ ये आपको ड्राइंग शीट में बनाने का है। दिस विल बी योर ड्राइंग शीट नंबर 5, जो मैंने कल आपको दिया था पीडीएफ में। तो ये जो भी न्यूमेरिकल्स में लेता हूँ ये सारे आपको बनाने के, ठीक है। पहले चार आप बना लेना। तो दिस, ये पहला जो है आपको वहाँ पे बनाने का है। हो गया यहाँ तक के? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। सर हाँ, पहले शीट में, एक शीट में पूरे डायग्राम निकालने हैं क्या वो? मैंने वो लिख के दिया ना बेटा, शीट नंबर 1 में क्या रहेगा, 2 में क्या रहेगा। हाँ, शीट तो ज्यादा डायग्राम है तो एक शीट में आ जाएंगे क्या, शीट आगे नंबर 1 पीछे, के? आगे पीछे अच्छा, हाँ ठीक है ना, आगे पीछे हाँ, बना लो। हाँ, वो प्लानिंग हाँ। करो। अभी आप इंजीनियर बनोगे ना तो प्लानिंग करो कहाँ कितना है, जाने तो पूरा मिटाने के बाद अरे आधा हो गया फिर मिटाओ, ऐसा नहीं। उसको प्लानिंग करो कि पैसे पहले उसका पूरा ऐसा मतलब बॉक्स बना लो कहाँ पे कितना आएगा। वो पूरा लाइंस, लेटरिंग, डायमेंशन पूरा एक ही इसमें आना चाहिए। सेकंड वाला जो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन, जो बाइसेक्टिंग लाइन, एंगल वगैरह ना, वो वहाँ वो वाला सेकंड था। थर्ड वाला आई थिंक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, 4 ही एग्जाम्पल है, वो तो बहुत सिंपल था। चौथा वाला प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, वो भी मैंने आपको दिया ही है, बना के दिया है। वही बनाने के, जितने आपने क्लास में अटेंड किए वही सब बनाने के। और सर आप वो यूट्यूब चैनल पे आपके वीडियो वो कैसे, मतलब कौन सी लिंक है? क्यों, तुमने नहीं देखा अभी तक? नहीं, नहीं दिखी। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर देना, सेंड लिंक करके, देन आई विल सेंड यू। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ओके। अभी ये अगर लाइन आपने बना लिया हो तो क्या करना है, जब भी आपको यहाँ पे डायग्राम पांचवा, फिफ्थ स्टेज अगर ये आपको ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है कि ये जो फिगर है थर्ड वाली, इसके डायमेंशन यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब इसके डायमेंशन मतलब बी डैश ए डैश पॉइंट कहाँ पे है, एक्स वाई के ऊपर। तो ये जो रेक्टेंगल है फोर्थ नंबर का फिगर, उसके जो हमने प्रोजेक्शंस ली है, बी डैश वाला प्रोजेक्शन का है यहाँ पे। तो ये x1 y1 का है, यहाँ यहाँ मार्क करो। देन ए डैश पॉइंट, ये वाला A1 पॉइंट, तो ये यहाँ पे ए डैश, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, एक्स वाई पे। तो ये हमारा नया एक्स वाई है, तो दोनों पॉइंट एक्स वाई पे इंटरसेक्ट करते हैं ना प्रोजेक्शन, वहां पे मार्क करना है। अब दूसरे पॉइंट ये वाले सी डी, ये कैसे मार्क करोगे आप, यहाँ पे आपको कंपास रखना है और इतना डिस्टेंस लेना है वर्टिकल है, ऐसा डिस्टेंस लेना है वर्टिकल। और क्या नाम है इसका, सी डैश डी डैश। तो सी का प्रोजेक्शन कहाँ है, ये वाला, और डी का प्रोजेक्शन क्या है, ये वाला। तो आपको पॉइंटर रखना पड़ेगा यहाँ पे, पॉइंटर रखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये जो डिस्टेंस आपने लिया था यहाँ पे रख के, यहाँ पे एक आर्क मार्क करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया। देन डी के लिए यहाँ रखो पॉइंटर और यहाँ पे एक आर्क मार्क करो, तो क्या होगा आपको इतना, ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये था बी डैश ए डैश, और ये है अपना C1 डैश और D1 डैश, B1 डैश A1 डैश, C1 डैश A1 डैश, D1 डैश। इसको फिर आपको ज्वाइन कर देना है, इस तरह से आपको वो फिगर दिखेगा। बन गया क्या, कि कोई अभी अड़ गए, किसी को नहीं जम रहा है? हो गया, हेलो, बन गया?
हो गया? Shall we take next one? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. We will take Yes, next sir. one. बन गया ना? जिन्होंने यस यस बोला उनने एटलीस्ट बनाया होगा. Yes. ठीक है. Yes, sir. ओके ओके. Yes, sir. नेक्स्ट. हाँ, यहाँ पे मैंने पूरा दिया है ट्रांसफर डिस्टेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लगे तो चाहिए होगा तो. फाइनल स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए होगा तो. Because this is your complete numerical of sheet number 5. चलो, okay. So we'll take next one. Next है a regular hexagon of 40 mm side has a corner in HP and its surface is inclined at 45 degree to HP and top view of diagonal through the corner which is in HP makes an angle of 60 degree BP. Draw its projection. तो अभी इसमें प्रॉब्लम जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या ड्रॉ करना है, 40 mm का एक हेक्सागन ड्रॉ करना है. अभी हेक्सागन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने सिखा दिया था आपको. ठीक है. सो 40 mm का हेक्सागन ड्रॉ करना है आपको. देन इसमें ट्विस्ट क्या दिया है कि उसमें कॉर्नर इन HP है. कॉर्नर जो है दैट इज इन HP. ठीक है. तो वो हेक्सागन कैसे बनेगा. और दूसरा सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP. मैंने आपको बोला था जब भी सरफेस वर्ड दिखता है वो पहले देखने का. उसके बेस पे हमको ये समझ में आता है कि डायग्राम स्टार्ट कहाँ से करना है. ओके. तो यहाँ पे बोला है उसने 45 डिग्री टू HP. तो जो हेक्सागन बनेगा वो XY के नीचे बनेगा कि XY के ऊपर बनेगा, कौन बताएगा. XY के नीचे बनेगा सर. XY के नीचे बनेगा बिकॉज सरफेस इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू HP. ठीक है. तो पहले इतना ही देखते हैं. पहले XY लाइन ड्रॉ करो और आपको एक हेक्सागन ड्रॉ करना. अब यहाँ पर इसने क्या बोला था, कॉर्नर इन HP. देखो ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर है HP में. अगर साइड इन HP बोला तो ये ऐसा नहीं आएगा, ये साइड इधर आएगा. ठीक है. साइड इन HP बोला तो ये इंपॉर्टेंट है. अगर ये कॉर्नर बोला है और अगर आपने इस तरह से ड्रॉ किया, ये जैसे देखा ऐसे ड्रॉ किया तो गए मार्क्स, मतलब पूरी मेहनत भी गई और 0 मार्क्स मिल गए. ठीक है. कॉर्नर बोला करके इस तरह से ड्रॉ करना है. और अगर कॉर्नर नहीं बोला, साइड बोला रहता तो ये साइड आई थी वर्टिकल. ओके. तो हेक्सागन कैसे ड्रॉ करते हैं, जनरल मेथड भी है. हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए एक सर्कल बनाओ 40 mm का. ठीक है. एक सर्कल बना दो ऐसे 40 mm का. आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे इस तरह से. ठीक है. देन अगर आप मार्क करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. अदरवाइज 120 का रहता है एंगल, उससे भी आप कर सकते हो. ठीक है. अभी रेक्टेंगल आपको हेक्सागन ड्रॉ करना आता है, इसलिए मैं अभी क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में पढ़ लिया था. तो यू ड्रॉ इट. या फिर ऐसे एक लाइन लो 40 mm की. इधर कितना लो, 120, ये 60, ये भी 40, ये भी 40. फिर यहाँ से लो. ठीक है. या सर्कल के अंदर भी ले सकते हैं, इंस्क्राइब सर्कल मेथड से भी ले सकते हैं. ठीक है. सो अभी आप देखो कैसे ड्रॉ करते हो. और इसको नाम दे देना आपको ABCDEF. ठीक है. सो ड्रॉ अ हेक्सागन ABCDEF below XY. Why below XY? Because it is given here surface is inclined 45 degree to HP. So that's why below XY we are drawing it. Okay. Then what you do, you have to project all those points. You have to project all those points on XY line. So when you project all those points, you will get those points here. This A will be A dash. This F and B will be F dash B dash. This E and C will be E dash C dash. And this D will be D dash. So what you will get? You will get a line in front view. And you will get an entire hexagon in top view. Okay.
हेक्सागन ड्रॉ करते आना चाहिए आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। और मैंने बताया था कि अगर रेक्टेंगल कॉर्नर है तो कॉर्नर से आना चाहिए, और अगर सपोज साइड है तो अपने साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इतना हो गया हो तो आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि वो जो लाइन है, यानी वो सरफेस, इट इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी। नाउ यू कैन टेक अ लाइन 45 डिग्री टू एचपी एंड which line? The line which you are seeing in front view, the same dimension you can transfer here. ये पूरे डायमेंशन आपको यहाँ ट्रांसफर करने हैं। आप कंपोज से वो डायमेंशंस या ट्रांसफर कर सकते हो। कंपोज से आप डायमेंशन ट्रांसफर कर सकते हो। क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की जिसका एंगल है 45 डिग्री का। फिर हमने क्या किया, ये सारे पॉइंट, जैसे कि अगर ये पहला पॉइंट है, मुझे ये ट्रांसफर करना है दूसरा, इतना डिस्टेंस लो, यहाँ से यहाँ आर्क मार्क करो। फिर यहाँ से इतना डिस्टेंस लो, यहाँ रख के इधर एक आर्क मार्क करो। ये तो आखिरी पॉइंट है। तो जहां जहां पे आपने आर्क किया है वहां वहां आपको वो सारे के सारे नाम लेबलिंग दे देना पड़ेगा। ओके, तो दिस विल बी योर सेकंड स्टेज। उसके बाद आपको पता है कि जितने पॉइंट्स आपको मिले हैं सभी को प्रोजेक्ट करना है आपको। यू हैव टू प्रोजेक्ट ऑल दोस पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? ये प्रोजेक्शन पहले नहीं आया। इस तरह से हमने ड्रॉ किया था। देन हमने एक लाइन ड्रॉ की और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने ट्रांसफर कर दिए। फिर हमने ये प्रोजेक्ट किए पॉइंट, नीचे पॉइंट करेंगे प्रोजेक्ट हम, ये से 2 और ये 2। उसके बाद आपको यहाँ से प्रोजेक्ट करने हैं। वो लाइन शायद इसमें रह गई है, मतलब इस तरह से है ना, ये भी ये इस तरह से प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट करना है, वो हुआ है, एनिमेशन थोड़ा लेट हुआ इसलिए दिखेगा। ठीक है, तो जैसे आप करोगे तो आपको फिर वो जहां जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहां वहां पे आपको क्या करना है, वो पॉइंट्स से करना है। और आपको एक रिड्यूस्ड शेप में एक हेक्सागन मिलेगा। रिड्यूस शेप में हेक्सागन मिलेगा। डायरेक्ट ड्रॉ करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, सो ये हो गया। जहां हमने रेड लाइन मार्क की है ना, उतना प्रॉब्लम पढ़ के हमने इतना ड्रॉ किया। okay? तो अभी आपको आगे का प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा। आगे क्या दिया है, एंड द टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल थ्रू द कॉर्नर which is in HP makes an angle of 60 डिग्री with VP। ओके, टॉप व्यू मतलब ये हमारा टॉप व्यू हो गया, उसका डायगोनल मतलब ये हो गया, है कि ना। टॉप व्यू का जो डायगोनल है मतलब जो कॉर्नर से निकला हुआ है, थ्रू द कॉर्नर, जो HP में है, वहां से कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको वहां से 60 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। तो इसके नाम दे देंगे पूरे।
ये पहले आ गया थे ये, इसको फिलहाल फॉरगेट करो। ये लाइन अब ड्रॉ करना है हमको, 60 डिग्री की लाइन है ये वाली यहाँ से, ठीक है। डायगोनल है ना, ये कोई भी ये लो है ना, 60 डिग्री का लाइन आपको ड्रॉ करना है। 60 डिग्री कहाँ से लेना है आपको पता है क्या? ये जो लाइन है ना, ये डायगोनल है, इसको आपको खींच के इधर लाना है और यहाँ से आपको 60 डिग्री का लेना है। So this will be 60, ये ऐसा 60 आएगा पूरा, ओके। इसने क्या बोला था यहाँ पे? डायगोनल थ्रू कॉर्नर विच इज इन HP, डायगोनल थ्रू कॉर्नर विच इज in HP मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ VP। सो डायगोनल मतलब ये डायगोनल होता है A1D1, दिस इज द डायगोनल। इसको एक्सटेंड करो और यहाँ से आपको 60 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करो, 60 डिग्री की इस तरह से, और फिर आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। कहाँ से? इधर ड्रॉ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। जैसे आप ट्रांसफ़र कर लोगे, ओके, ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कौन से पॉइंट दिख रहे हैं? ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको A' F', ये पॉइंट कहाँ से आए? ये जो फिगर है, ये पूरे पॉइंट हमने यहाँ से ट्रांसफर कर दिए। अब ये हमारा नया X1 Y1 लाइन है। दिस इज अवर न्यू X1 Y1, इज अवर न्यू X1 Y1, X1 Y1, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो डिस्टेंस, जैसे कि ये A' पॉइंट है XY पे है, तो ये A' का जो प्रोजेक्शन है वो जहाँ पे टच होता है XY पे, तो ये हो गया आपका A'। देन ये F और B को मार्क करना है, तो यहाँ से इतना आपको डिस्टेंस कंपास में लेना है। F की लाइन कौन सी है? मतलब F का प्रोजेक्शन ये वाला है, तो आपको यहाँ पॉइंटर रख के यहाँ पे मार्क करना है। देन B का ये वाला है, तो यहाँ पे पॉइंटर रखना है आपको, इतना डिस्टेंस मार्क करना है। तो ये हो गया आपका F' एंड B'। देन ये जो C और E है, ये इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है। C की लाइन कौन सी है? ये वाली, मतलब यहाँ रखना है पॉइंटर और यहाँ पे आपको मार्क करना है। देन E के लिए ये E पॉइंट है, यहाँ पे रखना है पॉइंटर और यहाँ से E पॉइंट मार्क करना है। और आखिरी का है D', तो इतना डिस्टेंस रखना है कंपास में। D का प्रोजेक्शन कहाँ पे है? ये D है, इसका प्रोजेक्शन है, यहाँ पे पॉइंटर रखो और D मार्क करो। तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर आपको बस सभी पॉइंट ज्वाइन करने हैं। इस तरह से आपको वो हेक्सागन दिखेगा जब आप ये सारे प्रोसेस करोगे। तो दिस इज योर फाइनल फिगर। सर हाँ बोलो। वो पॉइंट कैसे मार्क करने हैं वो बताओ ना। कौन से पॉइंट? ये वाले, ये हाँ सर। ये लाइन ड्रॉ कर ली आपने 60 की? हाँ सर। ये प्रोजेक्शन ले लिए? हाँ सर। हाँ, तो जब भी आपको ये ड्रॉ करना होता है ना, आपको ये वाली फिगर रेफर करना है, फिगर नंबर 3, ठीक है। जब भी आपको इसको रेफर करना है, ये वाली फिगर को, ठीक है। इसमें कैसे रेफर करोगे आप? आपको ये देखना है इसमें कि यहाँ पे जितने डिस्टेंस है ये सारे के सारे आपको ट्रांसफर करने हैं। तो ये A' पॉइंट है, ये कहाँ पे है? XY पे है ना, तो वो सेम यहाँ पे जो नया XY है वहां पे वो पॉइंट मार्क करना है। कहाँ पे? जो A का जो प्रोजेक्शन है, वो A का प्रोजेक्शन कहाँ टच हो रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट मार्क करना है और उसका नाम दे देना है A' या A1', जो भी नाम देना वो दो। देन दूसरा है F और B। इसके लिए आपको कंपास में इतना ये वर्टिकल डिस्टेंस लेना है, वर्टिकल सीधा ये डिस्टेंस लो ऐसा, कहाँ से? XY से FB तक। अब F की लाइन कौन सी है? ये वाली है ना, प्रोजेक्शन लाइन ये है। कहाँ पे टच हो रहा है? यहाँ पे। यहाँ पे आपको पॉइंटर रखना है और वो जो डिस्टेंस अपने कंपास में लिया था यहाँ पे मार्क करना है उस लाइन पे। यहाँ पे नाम देना है F'। देन B का प्रोजेक्शन है, B, ये इसको मार्क करना, यहाँ से पॉइंटर रखना और यहाँ से मार्क करना पॉइंट B।
अभी आपको मार्क करना है सी और ई पॉइंट। तो सी और ई पॉइंट यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से लेना है, यहाँ से आपको डिस्टेंस लेना है कंपास में इतना, और ये डिस्टेंस आपको ट्रांसफर करना है सी और ई के प्रोजेक्शन लाइन में। जैसे सी का प्रोजेक्शन ये है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से आपको इधर मार्क करना है। तो दिस इज अ पॉइंट फॉर सी एंड दिस इज अ पॉइंट फॉर ई, ये ई के लिए हो गया, तो ये यहाँ मार्क करना है, ठीक है। और आखिरी का डी है। हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ। वो जो डायगोनल को एक्सटेंड किए वो उसमें 60 डिग्री का एंगल कैसे लेना प्रोटेक्टर के साथ? यहाँ रखो ना प्रोटेक्टर, ये जो लाइन है ना, हाँ यहाँ प्रोटेक्टर रखो, तुमको 60 मिलेगा नहीं डायग्राम, हाँ सर ठीक है ले लो ना सीधा। हाँ हाँ। ठीक है बेटा, समझा आपको जो पूछ रहे थे मुझे कि ये पॉइंट कैसे लेना है? हाँ सर। हाँ ठीक है, बना लो। तो ये हो गया आपका सेकंड फिगर, ये भी आपको ड्राइंग शीट में बनाने का है। और टू द डायमेंशन, अभी आप जैसे आपके स्केच बुक में बना रहे हो सेम आपको वहां बनाने का है। ठीक है। इतना काफी है आज के लिए, थक गए होंगे आप लोग, या आगे और एक न्यूमेरिकल लूं? अभी भी लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं, सोते होंगे, सोते रहते होंगे। हाँ हो गया, क्या ड्रॉ हो गया? 60 डिग्री एंगल हाँ लिया तो सर। हो गया। ऐसे दिख रहा है क्या जैसे मैंने बनाया है, ये अजीब सा लग रहा थोड़ा है? सा मतलब फैल गया। थोड़ा सा मतलब अलग है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बन तो रहा है कम से कम। नहीं तो ये तो इतने दूर से पढ़ाना बहुत मुश्किल था। कितने लोग बना रहे आज? तो लोग सब सो गए होंगे ना, 60-70 लोग ज्वाइन हुए, सिर्फ, ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं किए। ठीक है ना, ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुए, आज के लिए इतना काफी है। ये 2 न्यूमेरिकल्स आप ड्राइंग शीट में बना लेना। ड्राइंग शीट खरीदी क्या बेटा आप लोगों ने? हाँ सर। लॉकडाउन नहीं सर। लॉकडाउन क्यों? दुकान तो खुला है, शटर पीछे सामने से बंद है, उसको वो दे देता चंद्रपुर में अगर बोले तो, उसको बोला। पहले नहीं हाँ सर बल्लारसा में नहीं सर, शटर ही बंद करके रखे हो। शटर बंद करके तो उसको ठोकने का, उसको बोलने का 2 करके। या चंद्रपुर में कोई अपने दोस्त को बोल देना लेके रखो करके, यहाँ से ले लो, यहाँ मिल जाएगा आपको। वो एलोरा वाले के पास मिल जाएगा, उसके अलावा वेंकटेश पता नहीं, नहीं मिल रहा। सर उनकी शॉप तो बंद है ना? बंद है क्या? हाँ सर, एलोरा भी बंद है। अभी क्या करा है सर, अभी वो सब बंद करके रखे शटर। अच्छा ठीक है, देखो जब भी आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल के लिए इसेंशियल है। क्योंकि प्रैक्टिकल जब अगर सपोज मान लो कि स्ट्राइक खत्म हो गया, तो ये सब्जेक्ट तो मैं सिर्फ A3 के लिए हूँ ना, तो मैं सिर्फ A3 के शीट चेक करूंगा। और वो बाकी जो सर है वो तो A2 A1 वाले, उन्होंने मुझे बोला कि तुम शीट दे दो बोले, तो वो चेक करेंगे ना, तो बना के रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फेल कर देंगे। प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, थ्योरी में अलग से पास होना है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल का अलग से वाइवा रहेगा, उसका अलग से एक MCQ क्वेश्चन रहता है, जो उसके अलग मार्क्स रहते हैं, दोनों अलग अलग क्रेडिट्स है। सो थ्योरी इज डिफरेंट देन प्रैक्टिकल, सो यू हैव टू पास बोथ डिफरेंटली। सो इसलिए आपको एक्चुअली 10 शीट्स है,
अब मैंने आपको 5 दिए हैं, अगर आपका सिलेबस होता है आगे तो हम लोग 6ठी 7वीं शीट देंगे, और डिपेंड करेगा अभी। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, ओके, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट ज्वाइन, व्हाई आई डोंट नो। सो what we will do is we'll kind of tomorrow there is holiday, but still I will take the class, okay? Okay, sir. टाइमिंग? Timing I will convey ना, I will convey, okay? ओके सर। 10 बजे नहीं लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखते हैं, है ना?